અમેરિકામાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે મતદાનની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। ડેમોક્રેટિક અને રિપબ્લિકન પાર્ટીના ઉમેદવારોએ મતદારોને મતદાનની અપીલ કરી। ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને કમલા હેરિસે મતદારોને મતદાન કરવાની અપીલ કરી છે। રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીનો જંગ જામેલો છે। 47મી રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે ભારતીય સમય અનુસાર સાંજે 4 વાગ્યાથી મતદાન શરૂ થયેલું છે। 6 નવેમ્બર સવારે 9 વાગ્યા સુધીમાં તમામ રાજ્યમાં મતદાન પૂર્ણ થઈ જશે। ચૂંટણી જીતવા માટે ટ્રમ્પ કે કમલા હેરિસને 270 સીટો જીતવી જરૂરી છે। અમેરિકાના 50 રાજ્યમાં કુલ 538 ઇલેક્ટોરલ વોટ 3 મોટા સ્વિંગ રાજ્યમાં હાલ વરસી રહ્યો છે। ભારે વરસાદ પેન્સિલ્વેનિયા, વિસ્કોન્સિન અને મિશિગન 3 મોટા સ્વિંગ રાજ્ય। પ્લેટફોર્મ એક્સના સીઈઓ મસ્કે કહ્યું કે જો ટ્રમ્પ હારશે તો દેશની અને છેલ્લી ચૂંટણી તો આપણી સાથે અમેરિકાથી વરિષ્ઠ પત્રકાર નીરવ ગોવાણી લાઈવ જોડાયા છે। નીરવભાઈ, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। અત્યારે યુએસ ઇલેક્શનમાં કેટલા ટકા ઇલેક્શન થયું છે અને આપનું ગણિત શું કહી રહ્યું છે અત્યારની સ્થિતિને જોતા? ત્યાં જી જુહી, વાત કરીએ અમેરિકાના ઇલેક્શનની તો અમેરિકાના ઇલેક્શનમાં અગાઉથી જ જે ઓનલાઈન વોટિંગની પ્રક્રિયા હતી તે થઈ ચૂકી હતી। 60 થી 65% મતદાન તો ઓનલાઈન વોટિંગ જ થઈ ચૂક્યું હતું। આજે મતદાન કેન્દ્ર ઉપર મતદાન કરવા આવવાની લોકોને ફરજ પાડવામાં આવી હતી। આજે એક કાર્યક્રમ હતો। આજની જો વાત કરીએ તો હું હાલ અત્યારે શિકાગોથી આપની સાથે જોડાયો છું। શિકાગોમાં આજે વેધરનો પ્રોબ્લેમ છે, એટલે વાતાવરણમાં આજે વરસાદ અને વાવાઝોડાનું આગાહી પણ કરવામાં આવી છે, જેને કારણે અહીંના જે મતદાન કેન્દ્રો છે ત્યાં પાંખી હાજરી જોવા મળી રહી છે મતદાન કેન્દ્રો પર। પરંતુ સાંજે 4 વાગ્યા પછી જ્યારે વાતાવરણ સુધરશે ત્યારે એવું લાગી રહ્યું છે કે મતદાન કેન્દ્રો પર ફરીથી લોકો મતદાન કરવાની ભીડ છે તે વધી જશે। જો વાત કરીએ ઇલેક્શનની તો ઇલેક્શનની અંદર આ વખતે જે મહત્વની બંને પાર્ટીઓ ડેમોક્રેટિક અને રિપબ્લિકન આ બંને પાર્ટીઓ ના જે ઉમેદવારો છે તેઓએ એડી ચોટીનું જોર લગાવ્યું છે પોતાની જીત માટે। જો ડેમોક્રેટિક પાર્ટી એટલે કે કમલા હેરિસ જો જીતે છે તો અમેરિકામાં ઇતિહાસ સર્જાશે, કારણ કે પહેલી વખત કોઈ અમેરિકામાં મહિલા ઉમેદવાર રાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણી જીતીને રાષ્ટ્રપતિ બનશે। જે રીતે હાલ પરિસ્થિતિ લાગી રહી છે, બંને નેતાઓ વચ્ચે સૌથી વધારે ટક્કર છે। મહત્વના મુદ્દાઓની વાત કરી લઈએ તો જે આર્થિક સંકળામણનો મુદ્દો છે તે ડેમોક્રેટિક પાર્ટીએ ઉપાડ્યો છે, જ્યારે ઇલીગલ ઇમિગ્રન્ટ્સનો મુદ્દો છે તે રિપબ્લિકન પાર્ટીએ ઉપાડ્યો છે। બંને મુદ્દા અમેરિકામાં પહેલેથી જ લોકોને અસર કરતા છે। હાલની પરિસ્થિતિ અમેરિકામાં જે રીતે મોંઘવારી વધી ગઈ છે તેને લઈને પરિસ્થિતિ વધારે ખરાબ છે। અમેરિકાની આર્થિક પરિસ્થિતિ અને મોંઘવારીને લીધે લોકોને અહીં ખૂબ જ નાજુક પરિસ્થિતિમાં રહેવું પડતું હોય છે, જ્યારે બીજી તરફ ઇલીગલ ઇમિગ્રન્ટ્સ કે જે અમેરિકાનો સૌથી જૂનો, સૌથી મહત્વનો અને સૌથી અસર કરતો મુદ્દો રહ્યો છે। ઇલીગલ ઇમિગ્રન્ટ્સ માટે ચોક્કસથી રિપબ્લિકન પાર્ટી એટલે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતે જાહેરમાં પણ કહી દીધું છે કે જો તે રાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણીમાં જીતશે અને રાષ્ટ્રપતિ બનશે તો અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું ડિપોર્ટેશન જે કહેવાય તે કરવામાં આવશે। હાલ જે પરિસ્થિતિ છે તેને જોતા એવું લાગી રહ્યું છે કે હવે જે સ્વિંગ સ્ટેટ છે કે જે સ્વિંગ સ્ટેટ્સના જે ઇલેક્ટોરલ કોલેજના જે મત છે તેની ઉપરથી જ નક્કી થશે કે અમેરિકામાં આગામી જે રાષ્ટ્રપતિ છે તે કોણ ચૂંટાઈને આવશે। જી જુહી। નીરવભાઈ, 2024ની આ જે ચૂંટણી છે એને પ્રભાવિત કરવા વાળા મુદ્દાઓ કયા આપના મતે? જી જુહી, મહત્વના મુદ્દાઓની વાત કરીએ 7 મહત્વના મુદ્દાઓ આ ચૂંટણીમાં લોકોને અસર કરતા છે। એક તો મોંઘવારી, કારણ કે જે રીતે અમેરિકામાં 2022 પછી મોંઘવારી દર વધ્યો છે, જે તમામ વસ્તુની જે ભાવ છે તે 3 ગણો વધી ગયો છે। ત્યારે ઇલીગલ ઇમિગ્રન્ટ્સ, કારણ કે અમેરિકામાં હાલ ક્યારેય નથી જોવા મળ્યા તેવા દ્રશ્યો છેલ્લા 2 વર્ષ જોવા મળ્યા છે। ન્યુયોર્ક, લોસ એન્જલસ, શિકાગો જેવા મોટા સિટી કે જ્યાં સૌથી વધારે ઇમિગ્રન્ટ્સ લોકો રહેતા હોય છે, ત્યાં જાહેર રસ્તાઓ પર ટેન્ટ બાંધીને તંબુમાં લોકો રહે તેવી જે ઝૂંપડપટ્ટી આપણે કહીએ છીએ, ઇન્ડિયામાં જેમ ઝૂંપડપટ્ટી આપણે ત્યાં હોય છે, એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ હવે ન્યુયોર્ક જેવા સ્ટેટમાં
ન્યુયોર્ક જેવા શહેરમાં, શિકાગો જેવા શહેરમાં જોવા મળે છે. એટલે આ જે ઇલીગલ ઇમિગ્રન્ટનો મુદ્દો છે તે સૌથી વધારે અસર કરતો રહ્યો છે આ વખતે. ત્રીજો મુદ્દો કે જે જળવાયુ પરિવર્તનનો, એટલે એને કારણે એ પણ એક મહત્વનો મુદ્દો હાલ અમેરિકા માટે રહ્યો છે. આ ચૂંટણીમાં અસર કરતો મુદ્દો પણ રહ્યો છે. સાથે સાથે અમેરિકા બેક, કે જે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું એક સૂત્ર પણ છે, અમેરિકા અગેન, કે એ એક મુદ્દો હવે લોકોને વધારે અસર કરતો થઈ ગયો છે. કારણ કે ધીરે ધીરે અમેરિકા પહેલેથી જ ઇમિગ્રન્ટ્સનો દેશ રહ્યો છે, પરંતુ ધીરે ધીરે હવે જે પરિસ્થિતિ નું નિર્માણ થયું છે, જે રીતે અફઘાનિસ્તાનની પરિસ્થિતિ જોઈએ, અફઘાનિસ્તાનમાં રિટ્રીટ કર્યું ત્યારે 1 લાખથી વધારે અફઘાનીઓને અમેરિકન ગવર્મેન્ટે અમેરિકામાં લાવી અને શરણ આપ્યું હતું. એ સિવાય યુક્રેનથી પણ ઘણા બધા લોકોને લાવ્યા છે. એ સિવાય ઇલીગલ ઇમિગ્રન્ટ્સ તો લાખોની સંખ્યામાં રોજ બરોજ અમેરિકામાં ઘૂસવાનો પ્રયત્ન કરતા જ હોય છે. એટલે આ બધા મુદ્દાઓ હાલ જોઈએ અમેરિકા માટે મહત્વના બની રહ્યા છે, અમેરિકાના ઇલેક્શનમાં મહત્વના બની રહ્યા છે. અને એમાં પણ હવે મતદારોનું ધ્યાન ખેંચવા માટે જે બંને નેતાઓએ જે આ મુદ્દાઓને પકડ્યો છે, તે એક લોકોના મિજાજ ઉપર પણ અસર થઈ છે. અત્યારે આપણી સાથે પબ્લિક ઓછી છે, કારણ કે જે મતદાન કેન્દ્ર પર છે ત્યાં વાતાવરણને લીધે મત માટે જ લોકો નથી આવી રહ્યા. એટલા માટે નહીતર લોકો સાથે પણ આપણે ચર્ચા કરત કે જે અસર કરતા મુદ્દાઓ છે તેમાં ઇમિગ્રન્ટ્સનો મુદ્દો કેટલો મહત્વનો રહ્યો. બિલકુલ જી, આભાર નીરવભાઈ, અમારી સાથે આપ જોડાયા અને તમામ વાતચીત કરી તેના માટે. આપણી સાથે जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर धीरज कौल जुड़ाયેલા છે. डॉक्टर धीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है. अमेरिका में स्विंग स्टेट वोटर्स कितने निर्णायक साबित हो गए इस बार? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. देखिए, मैं पर्सनली पेंसिल्वेनिया में हूँ अभी, और अमेरिका में इस टाइम 7 स्विंग स्टेट्स हैं, जिसमें से 4 क्लियरली ट्रंप की तरफ 1% मार्जिन से लीड कर रही हैं, और 2 जिसके अंदर एक विस्कॉन्सिन और एक मिशिगन जो कमला हैरिस को थोड़ा सा लीड दिखा रही हैं, और एक है अनडिसाइसिव स्टेट जो है पेंसिल्वेनिया. सो क्लियरली पेंसिल्वेनिया जहां मैं हूं, वो जो यहां से जीतेगा ऐसा डिसाइड किया जा रहा है कि वही व्हाइट हाउस जाएंगे. तकरीबन 19 वोट्स यहां से आते हैं. और अगर आप देखिए तो ग्राउंड के ऊपर पेंसिल्वेनिया इज अ डेमोक्रेट स्टेट. यहाँ पे गवर्नर भी डेमोक्रेट हैं, सेनेटर्स, यूएस सेनेटर्स भी डेमोक्रेट पार्टी के हैं. लेकिन पिछले कई महीनों में बहुत अंडर करेंट्स वेव चल रही हैं. जो बॉर्डर लाइन वोटर्स थे वो ट्रंप की तरफ रुझान कर रहे हैं, इसलिए आपको गैप 48-48 दिख रहा है, मैचिंग. उसके अंदर 3 बड़े मुद्दे हैं. एक इलीगल इमिग्रेशन, जिसमें 12 मिलियन लोग अमेरिका में घुस चुके हैं, जिससे क्राइम रेट भी बढ़ा है छोटे शहरों में, इंक्लूडिंग जहां ट्रंप या जहां से बाइडेन है, स्क्रैंटन पेंसिल्वेनिया में, वहां पे भी. न्यूयॉर्क में हम लोगों ने देखा कि टाइम स्क्वायर पे भी पुलिस वालों को मारा पीटा गया बाय इलीगल इमिग्रेंट्स. और ये जो लोग हैं, इनकी वजह से अमेरिकन सिस्टम, हेल्थ केयर, मैं फिजिशियन हूँ, हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ड्रेन है, स्कूल्स के अंदर ड्रेन है, इनको होटल्स में ठहराया जा रहा है. तो पब्लिक जो कि ऑलरेडी ग्रसित है हाई इन्फ्लेशन से, उनको नहीं समझ आ रहा कि हम इतना टैक्स पे करते हैं और ये दूसरे लोगों के देश जो इलीगली आ रहे हैं उसके लिए खर्चा हो रहा है. सेकंड है जियो पॉलिटिक्स. हम लोग अमेरिका में बहुत लोग बिलीव करते हैं, स्पेशली मिलेनियल्स और जेनजी जनरेशन के जो लोग हैं और मेरी एज ग्रुप के लोग, कि हमें बहुत कंसर्न है कि वर्ल्ड वॉर 3 और वर्ल्ड में फ्यूचर क्या होगा. तो जब ट्रम्प था तो वॉर्स कम थी, ये डेफिनेट बात है. और जियो पॉलिटिकली आई थिंक ट्रम्प के अंदर निगोशिएटिंग पावर्स आर मच मच बेटर. और जो तीसरा इशू है वो है इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, जॉबलेसनेस. अच्छी जॉब्स, मैकडोनल्ड्स, डंकिन डोनट की जॉब्स नहीं, अच्छी क्वालिटी जॉब्स अमेरिका में इस टाइम बहुत कम है. तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ा है. और दूसरा, अगर देखिए तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स, अगर आप घर पहले खरीद सकते थे आज से 5 साल पहले, अभी हाउस इन्फ्लेशन बहुत महंगे हो चुके हैं घर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से. तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है. लेकिन अगर आप कमला हैरिस की बात करें तो उन्होंने वुमेन्स राइट और वुमेन्स फर्टिलिटी राइट के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन रेज किया है. लेकिन अभी ट्रंप बाहर आके बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ अबॉर्शंस के ऊपर कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो बिल्कुल बैन कर देंगे. तो बहुत कांटे की टक्कर है. मैं जिस स्टेट में हूँ, बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग एनवायरनमेंट है. रैलीज यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई हैं. कल पूरे दिन भर कमला हैरिस यहाँ थी, ट्रंप आए थे. और आज भी अगर आप देखेंगे तो पोलिंग बूथ्स के ऊपर मोस्ट ऑफ द बिग पोलिंग बूथ्स पे लॉयर्स बैठे हुए हैं टू मेक श्योर कहीं पे कोई डिस्क्रिपेटेंसी ना हो.
तो आपको पता ही है कि लास्ट ईयर भी 2 ही स्टेट्स थे जिन्होंने डिसाइड किया लास्ट इलेक्शन में, एक था जॉर्जिया, एक था पेंसिल्वेनिया। हमारे जो मेल इन बैलेट के वोट हैं पेंसिल्वेनिया के लॉ के अकॉर्डिंगली, जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होता तब तक वो काउंट नहीं होते। तो इलेक्शन आज शाम को खत्म हो जाएगा रात को, उसके बाद आपको और दिखेंगे कि क्या नंबर्स आ रहे हैं। तो अभी तक जो रुझान है उसके अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है ये 3 मुद्दे, इमिग्रेशन, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, जॉब क्रिएशन और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिसके अंदर जो मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर चल रही हैं, यूक्रेन की वॉर चल रही है, इनको लेके बहुत लोग चिंतित हैं और वो काफी लोग ट्रंप की तरफ जा रहे हैं, इंक्लूडिंग ब्लैक मैन। काफी हद तक उस तरफ से उनका रुझान हो रहा है। इवन अगर आप देखें, मैं पर्सनली कई डजन्स ऑफ लोगों से बात कर चुका हूं जो कि इमिग्रेंट्स हैं, फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पे क्रॉस करके आए, 15-20 साल काम किया, टैक्स दिए, ग्रीन कार्ड लिया, सिटीजनशिप ली। वो भी अगेंस्ट हैं कि कोई सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है, उसे $7,000 आप चेक दे रहे हैं और होटल में ठहरा रहे हैं, तो इट्स लाइक चीटिंग। सो जो हार्डकोर बेस था डेमोक्रेटिक पार्टी का, इमिग्रेंट्स, वो भी अब ट्रंप की तरफ आपको रुझान कई स्टेट्स में दिख रहा है, इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क जो कि हार्डकोर बेड है। बिल्कुल धीरज जी, यूएस में रह रहे भारतीय लोग का जो झुकाव है वो आप किस तरफ देख रहे हैं और क्यों? देखिए, भारतीय लोग यूएस में जो आते हैं, पर कैपिटा जीडीपी का अगर आप समझिए तो हम 300 गुना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्सेस में, 300 से 400 गुना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द इंडियन इमिग्रेंट्स जो आपको यहाँ दिखेंगे वो लीगल राउट के थ्रू आए हैं और प्रोफेशनल्स हैं, एजुकेशन है। हाँ, पिछले कुछ 1-1.5 साल में हमें बहुत से इंडियन भी पंजाब, हरियाणा और जगहों से मैक्सिको के थ्रू आते हुए दिख रहे हैं, गैस स्टेशन पे काम करते हैं, उनकी हालात बहुत खराब है, लेकिन वो एक बहुत मिनॉरिटी है। लेकिन बल्क आर लीगल, और बल्क अगर आप इंडियन लोगों को देखेंगे जो टेक्नोलॉजी में है, आईटी में है, हेल्थ केयर में है, 15-15 साल उनको वेट करना पड़ता है ग्रीन कार्ड लेने के लिए, क्योंकि बैकलॉग क्रिएट हो चुका है इलीगल इमिग्रेंट और असाइलम सीकर्स की वजह से। तो इंडियन पॉपुलेशन अगर आप बात करेंगे तो वो डेफिनेटली लीगल इमिग्रेशन के पक्ष में है, और ट्रंप भी ये बात मानते हैं कि उन्हें प्रोफेशनल लोग चाहिए, अच्छे पढ़े लिखे लोग चाहिए, और इंडियन लोएस्ट अमाउंट ऑफ क्राइम है हमारी कम्युनिटी का, और कंट्रीब्यूट भी बहुत अच्छा करते हैं। तो ट्रम्प भी यही चाहते हैं कि लीगल इमिग्रेशन के थ्रू इंडियन लोगों को लाया जाए और प्रोफेशनल लोगों को लाया जाए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि कंट्री की ग्रोथ हो, और रिलेटिव्स को लाया जाए, ना कि कोई भी क्रॉस करके बॉर्डर आ रहा है। तो ट्रंप की तरफ झुकान डेफिनेटली इस इलेक्शन में दिख रहा है, लेकिन ऐसा बोल देना कि सब इंडियन ट्रंप की तरफ है या सब हैरिस की तरफ, वो गलत होगा, क्योंकि इंडियंस अपना इंडिविजुअल मत रखते हैं अमेरिका में। लेकिन लेटली मुझे ये जो 3 मुद्दे हैं जिसकी वजह से बहुत कंसर्न है, इकोनॉमी, दूसरा है इमिग्रेशन, और ये आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में जो वॉर्स चल रही हैं, ये सब को इफेक्ट करता है। यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत है, इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल एंड दे आर वॉचिंग इट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय शायद इंडियंस थोड़ा ज्यादा ट्रंप की तरफ वोट करेंगे एज कंपेयर टू लास्ट टाइम, फॉर श्योर। ये तो ग्राउंड पे दिख रहा है। जी जी, धीरज जी, जो उद्योगपति, जो बिजनेसमैन वहां पे रह रहे हैं, वो किसकी तरफ है? और साथ में भारत की बात की जाए, भारत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन है, हैरिस या ट्रंप, आपके हिसाब से? देखिए उद्योगपति, आपका पहला सवाल अगर मैं बात करूं तो उद्योगपति की बात करें तो डेफिनेटली ट्रंप ज्यादा बेटर रहेंगे, क्योंकि वो जो टैक्सेस हैं इंडस्ट्री की तरफ, जो कैपिटल गेन टैक्सेस होते हैं, और जो हम लोग ट्रेडिंग, जो इवन स्टॉक मार्केट के गेन्स के, या अगर आप प्राइवेट बिजनेस खोलना चाहते हैं, स्मॉल बिजनेसेस, उनकी काफी सपोर्ट करेंगे, और हैरिस ने भी बोला है स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करेंगी। लेकिन टैक्स कटिंग, जो टैक्स घटाना बड़े बड़े बिजनेसेस के ऊपर, ताकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो, ताकि सैलरीज बिजनेसेस अपने प्रॉफिट को शेयर कर पाए नीचे लोगों से, वो ट्रंप ने काफी बोला है। और उसने ये भी बोला है कि जो हम चाइना से चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, वो फैक्ट्रीज हम वापस अमेरिका में लाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और मेड इन अमेरिका हम करेंगे, जिससे कि मुझे लगता है कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको फायदा होगा। अगर इंडिया के संदर्भ में बात करें तो देखिए, हैरिस भारतीय मूल की हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टैंड इंडिया के फेवर में नहीं लिया है। अभी रिसेंटली ट्रंप ने हिंदू एट्रोसिटीज के ऊपर बोला, वो काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कॉज कर रहा है इस टाइम ऑन ग्राउंड इंडियन डायस्पोरा के ऊपर, स्पेशली जो हिंदू बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए। दूसरी बात, जब ट्रंप थे तो उन्होंने इंडिया के साथ काफी अच्छी ट्रीटीज की, काफी अच्छे डील्स किए, इंडिया को एक ग्रोथ पार्टनर की तरफ देखा, और अभी की गवर्नमेंट भी ऐसा करती है। लेकिन ट्रंप का मुझे ये जरूर लगता है कि क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए वो अच्छा रहेगा,
दूसरा इंडिया के साथ जियोपॉलिटिकल कोलैबोरेशन ट्रम्प के बहुत अच्छे रहेंगे, और मुझे ये भी लगता है कि जो इंडिया एक गलत सिचुएशन में फंसा है कि एक तरफ रशिया है एक तरफ अमेरिका है, वो सिचुएशन थोड़ी मेलो डाउन होगी, क्योंकि ट्रम्प के रिलेशनशिप्स पुतिन के साथ भी अच्छे हैं, शी जिनपिंग के साथ भी अच्छे हैं, नॉर्थ कोरिया, तो चीजों को काम डाउन करेंगे और इंडिया को ऐसी पोजीशन में फंसना नहीं पड़ेगा कि एक साइड का पक्ष लेना पड़ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के हिसाब से भी ट्रम्प अगर आते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑल्दो करंट डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी कोई ऐसे खराब स्टेप्स नहीं लिए, लेकिन ट्रम्प मुझे लगता है एक दो स्टेप एक्स्ट्रा जाकर भारतीय लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत लोगों के साथ भारत में कनेक्टेड हूँ, कई लोग उसके लिए प्रे भी कर रहे हैं कि ट्रम्प यहाँ पे जीते। तो इंडिया के लिए तो मुझे लगता है अच्छा होगा, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस और इंडस्ट्री, एक्सचेंज, डिफेंस, काफी सेक्टर्स के अंदर। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ट्रम्प अभी करने वाले हैं, वो है एनर्जी। यहाँ की हर चीज महंगी, वन ऑफ द रीजन इज एक्सपेंसिव एनर्जी। तो ड्रिलिंग और फ्रैकिंग को वो ग्रीन लाइट देने वाले हैं, जिससे यहाँ पे एनर्जी की कॉस्ट कम होगी, तो इन्फ्लेशन कम होगी और चीजें सस्ती मिलेंगी। जी जी। और अभी आप तो जानती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो वर्ल्ड में भी तेजी से बूम कर रहा है, एक है डाटा सेंटर्स और दूसरी है एनर्जी। जितनी सस्ती एनर्जी उतना एफिशिएंट एआई ग्रो करेगा। तो यूएस वांट्स टू लीड इन एआई, उसके लिए हमें एनर्जी सस्ती चाहिए। तो ट्रम्प उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जी जी, शुक्रिया धीरज जी हमसे जुड़ने के लिए और इतनी बातें शेयर करने के लिए। तो અમેરિકામાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે મતદાનની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। ડેમોક્રેટિક અને રિપબ્લિકન પાર્ટીના ઉમેદવારો વચ્ચે જંગ જામ્યો છે। મતદારોને મતદાનની પણ અપીલ કરતા નેતાઓ જોવા મળ્યા। કમલા હેરિસ મૂળ ભારતીય પણ ભારત તરફી ખાસ કોઈ વલણ નથી રહ્યું તેવું એક્સપર્ટ્સ માની રહ્યા છે। Everybody's got to do their civic duty, so you got to get out here and vote. That's Perfect. part of it. Thank you. And all guys, today look like an excited day, everybody, right? Oh yeah, it's been busy all It's a morning. busy days all morning. I can see the too many people lined up. Yeah. And yes. In abroad, people out of country, Yep. they are interested in this election this year too. I served in Kosovo, so I was, so I've seen genocide. I've been around it, so this is a part of it. This is what's great about it. Is Democracy, everybody's yeah. in here in line, and it's safe, and we can all get our vote in and choose who we want. अमेरिका में आज है मतदान का दिन और इस समय हम हैं वॉशिंगटन डीसी में। यहाँ सुबह 6 बजे के बाद अलग अलग राज्यों में वोटिंग के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान केंद्र में जा रहे हैं और गहमा गहमी के बीच अपना मत डाल रहे हैं। वैसे तो इस बार कांटे की टक्कर है और ये चुनाव बेहद संवेदनशील है। आप देख सकते हैं सुरक्षा भी बहुत ज्यादा कड़ी है। पिछले चुनाव के बाद जिस तरह की हिंसा भड़की थी और जिस तरह तनावपूर्ण माहौल था, उसके बाद सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। सरकार कोई भी नहीं उठा रही है जोखिम जिसमें किसी भी तरह की कोई भी तनावपूर्ण स्थिति बने। आप वैसे तो अर्ली वोटिंग काफी महीनों से चल रही है, लेकिन आज कई लोग वोटिंग के लिए निकले हैं और इसमें ये 3 खास ग्रुप हैं। पहला ग्रुप ऐसा है जो पारंपरिक तौर पे हमेशा चुनाव के दिन ही अपना मत डालते हैं, भले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया हो कि वो किस उम्मीदवार को वोट देंगे, लेकिन वो चुनाव के दिन ही बाहर आकर अपना मत डालते हैं। दूसरा वर्ग वो है जो इस तरह की गहमा गहमी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है और उन्हें मन रहता है कि अगर वो पहला वोट डाल रहे हैं या फिर अपना हर साल का वोट डाल रहे हैं तो भी वो चुनाव के दिन ही आकर इस तरह के माहौल को एंजॉय करें और फिर अपना वोट डालें। तीसरा सबसे अहम ग्रुप जो आज वोट डालने निकला है वो है अनडिसाइडेड्स का। ये वो लोग हैं जो इस चुनाव का रुख बदल सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरी दिन तक अपना मन नहीं बनाया कि वो कमला हैरिस को वोट देंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप को। कई लोगों से बात हुई, कई सर्वेक्षण हुए और उन्होंने साफ कहा कि वो आज सुबह जब उठेंगे उसके बाद ही तय करेंगे कि अपने किस उम्मीदवार को उन्होंने वोट डालना है, क्योंकि इस बार का चुनाव कांटे की टक्कर का है और वो मन नहीं बना पा रहे हैं कि उनके लिए कौन सा उम्मीदवार बेहतर साबित होगा। तो वोटिंग की प्रक्रिया जोरों पर है, गहमा गहमी का पूरा माहौल है और कुछ घंटों बाद जब पोल्स क्लोज होंगे, जो शाम को 6 और 8 बजे के बीच होंगे, उसके बाद नतीजे आने शुरू होंगे। लेकिन क्या नतीजे तुरंत ये साफ करेंगे कि पलड़ा किसका भारी है, ये कहना बहुत मुश्किल है। अमेरिका में आज मतदान का दिन है और इस समय हम हैं वॉशिंगटन डीसी में। यहाँ सुबह से ही अलग अलग राज्यों की तरह वोटिंग प्रक्रिया पूरे जोरों पर है। सुबह से ही लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और पूरे जोश के साथ अपना मत डाल रहे हैं। इस बार का चुनाव कांटे की टक्कर का है।
डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या कमला हैरिस, इसके चांस 1% से भी कम बताए जा रहे हैं हार जीत के। ऐसे में हर मत जो आज डाला जा रहा है उसके मायने काफी बढ़ जाते हैं। सुरक्षा की भी यहाँ पर पूरी कड़ी से बंदोबस्त कर रखे हैं। खतरा ये नहीं है कि अगर कमला हैरिस हारती हैं तब क्या होगा। आशंका इस बात की है कि अगर नतीजे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाते हैं तो उनके समर्थक, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फैन बेस है उनका, वो क्या करेंगे। इसी के मद्देनजर कैपिटल हिल के आसपास या फिर वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के आसपास जितनी भी अहम सरकारी इमारतें हैं उनके आसपास सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस, कैपिटल हिल पुलिस, सीक्रेट सर्विस और होमलैंड सिक्योरिटी सबको यहाँ तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को होने से बचाया जा सके। इस बार 5 नवंबर को कौन है जो मत देने बाहर निकले हैं। अर्ली वोटिंग कई महीनों से चल रही है, इसके बावजूद एक बड़ा तबका है जो आज यहाँ पर वोटिंग के लिए आया है। पहला वर्ग तो वो है जो पारंपरिक तौर पर उसी दिन वोट डालते हैं जिस दिन वोटिंग का दिन है। वो अर्ली वोटिंग के लिए नहीं जाते, उनको वो माहौल पसंद है जो पोलिंग के दिन होता है। लेकिन जो सबसे अहम ग्रुप जो आज रहने वाला है वो है अनडिसाइडेड्स का, उन लोगों का जिन्होंने आखिरी दिन तक अपना मन नहीं बनाया कि वो कमला हैरिस को वोट देंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप को। और यही वो वोटर्स हैं जो दोनों उम्मीदवार जिनके ऊपर दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदें बंधी हुई हैं। वो चाहते हैं कि आखिरी दिन वो अपना मत उनके ही खेमे में डालें। तो आज किसका पलड़ा भारी होगा, कमला हैरिस का या डोनाल्ड ट्रंप का? ये अनडिसाइडेड वोटर्स जो आज निकले हैं अपने घर से आखिरी दिन वोट डालने के लिए, उनके ऊपर निर्भर करता है। और पोल्स क्लोज होंगे शाम को 6 और 8 बजे के बीच, और उसके बाद जब काउंटिंग शुरू होगी तब रुझानों से साफ होगा कि कौन जीत रहा है।